नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट ऑफ लाइन ऑफ फायर। आज कॉफ़ी कॉमर्स और कहानियाँ के इस पॉडकास्ट में वी आर ब्रॉडली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑन गोइंग इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड द करंट डेवलपमेंट्स। लेट मी स्टार्ट विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, ये लफ्ज़ थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर रणधीर जायसवाल के while he was addressing a press conference on 22nd of July. Now in this press conference हमारे external affair minister रणधीर जायसवाल in no uncertain terms he very clearly tells everyone that इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल डिस्कशन अब तभी होगी when Pakistan when they agree or when there is a talk that's supposed to happen with Pakistan on the illegally occupied Kashmir, on vacating the illegally occupied Kashmir territory. एक उस पे बात होगी and Kashmir with Pakistan, India will not have any kind of bilateral discussion until Pakistan agrees to abjure all its terrorist acts or terrorist activities verifiably and irrevocably against India. जो वो आज तक करती आई है, they need to be abjured verifiably and irrevocably before these उसी के लिए कोई भी bilateral discussions होगी, वरना कोई bilateral discussions नहीं होंगी. I think it is a very very strong and assertive measure जो हमारी गवर्नमेंट ने ली थी, हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ली थी, and it's a very bold step. लेकिन इसके बाद क्या क्या होता है, it's important that we know कि इसके बाद क्या क्या हुआ. So alongside the statement that our external affair minister made, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार की जिनको भेजा जाता है 33 UNSC और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में to rally confidence against Pakistan and project Pakistan as the epicenter of terrorism. और इसके साथ ये भी था कि वी वर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई एंड लीगलाइज द सस्पेंशन ऑफ Indus Water Treaty. Now it's important to mention कि Indus Water Treaty was suspended as a retaliation effort or as a retaliation action against Pakistan immediately after the Pahalgam attack. Pahalgam attack होता है on 22nd of April और on the 23rd of April we get to see abeyance of Indus Water Treaty. Indus Water Treaty क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे इस पॉडकास्ट में. But before that, let me bring back your attention to the global diplomatic outreach जो हमारी इंडिया ने लिया था with the formation of this 7 all party delegation. ये एक बहुत ही strategic move था by our Indian establishment, Indian government, और this was a major global diplomatic outreach to rally confidence against the ongoing India-Pakistan conflict. Not just that, it was also a major step taken against the constant cross-border terrorism जो पाकिस्तान आज तक करती आई है. So it was a very bold step. और इसमें हमको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती है. One was both the ruling party and the opposition, they came together as a team और उनका एक common agenda था that was zero tolerance against terrorism. So they were joined at the hip to drive the message across the globe or across these 33 nations to spread the message that India will no longer be tolerant towards any kind of terrorist activities or attacks by any country, specifically Pakistan. ये एक बहुत बड़ा significant notable चीज़ है. The second thing that this all party 7 all party delegation represented was the national unity. It was not just about the ruling and the opposition coming together or being joined at the hip to drive up a common agenda, but it was also a representation of communal harmony
राइट. सो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जो हमें इस ऑल 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन में हमको देखने को मिली थी. नाउ दीज 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस दे ट्रैवल, वो जाते हैं इन 33 देशों में और टेररिज्म और पाकिस्तान के अगेंस्ट दे रैली टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ दीज 33 नेशंस टू प्रूव पाकिस्तान एज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म. अब इसमें होता क्या है, 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन ने यूएनएससी का जो अरियर फॉर्मूला मीटिंग था उसमें डे 1 में क्या होता है, लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दैट. डे 1 में हमारे इंडिया के जो परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर पर्वतानेनी हरीश, उन्होंने पाकिस्तान का जो एक कांस्टेंट डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन पाकिस्तान चला रही है अगेंस्ट इंडियाज़ डिसीजन ऑफ द वाटर ट्रीटी अबेयंस, इसको पूरी तरीके से नकारा. कैसे नकारा, इसमें 4 ब्रॉड पॉइंट्स उन्होंने कवर किए थे एंड आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन ईच वन ऑफ देम. सबसे पहला था पाकिस्तान वायलेशन ऑफ द ट्रीटी स्पिरिट थ्रू 3 wars and thousands of terrorist attacks. अब तक पाकिस्तान ने ओवर डेकेड्स तीन लड़ाइयाँ लड़ चुकी हैं अगेंस्ट इंडिया, और इसने अभी तक के जितने टेररिस्ट अटैक्स इंडिया पे हुई हैं उसकी वजह से 20,000 प्लस इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. So this somewhere has already violated the very preamble of the treaty. दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने सामने रखा, दैट वाज द डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट चला रही थी, शायद करती रहेगी until it's resolved. कब होगा वी डोंट नो, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान चला रही है अबाउट द ट्रीटीज़ अबेयंस, इसको पूरी तरीके से खंडन करते हुए ने ये साफ कर दिया था दैट इंडिया एज एन अपर रिपेरियन स्टेट हैज़ नॉट वायलेटेड एनी ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है बखूबी. उसके बावजूद इंडिया ने ये डिसीजन लिया है टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी एज अ प्रोटेस्ट और एज एन act of retaliation against Pakistan's constant terror attacks on India, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों जाने जा रही हैं over decades of course. So this was one of the significant points जो disinformation, पाकिस्तान का जो disinformation campaign चल रहा है उसके अगेंस्ट में हाईलाइट किया गया था. तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया था दैट वाज ऑन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, क्लाइमेट चेंजेस और पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है. पाकिस्तान जो कॉन्स्टेंटली स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अगेंस्ट चला रही है, फैला रही है, कर रही है फॉर एजेस, इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है इसको. और इस perhaps the water treaty abeyance is just the first step towards it. इसको लीगलाइज कैसे ठहराया गया? There is provision in Sanchez in Rebus 6 Sanchez there is a provision to suspend any treaty based on any changes to its fundamental circumstances, or in case of India and Pakistan there is an evident and visible change in the circumstances, in the fundamental circumstances of the treaty. So this sort of legalized, because if I talk about Rebus 6 Sanchez, it is actually as per the international law principle. तो ये legalize करता है इंडिया के स्टांस को या फिर इंडियाज़ यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द ट्रीटीज़ अबेयंस. चौथा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया था इन द अरियर फॉर्मूला मीटिंग वो था कॉल ऑफ रिजेंटमेंट, विच इज़ पाकिस्तान को इंडिया ने अब तक करीब 2 बार प्रपोजल दे चुकी है इंडिया पाकिस्तान को दैट द इंडस वाटर ट्रीटी नीड्स मॉडिफिकेशन. अब पाकिस्तान हर बार इस प्रपोजल को रिजेक्ट करती आई है और किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन डिस्कशन से पाकिस्तान अपने आप को बचाती आई है, भागती आई है. क्यों करती आई है? विल डिस्कस अबाउट इट. मैं विस्तार में बताऊंगी कि पाकिस्तान के क्या क्या रीजंस, पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं टू नॉट कम टू द टेबल फॉर अ डिस्कशन.
इससे पहले कि हम ये जानें कि वाई इज़ पाकिस्तान नॉट इंटरेस्टेड और पाकिस्तान इज़ resisting any kind of discussion on the modification of Indus Water Treaty, it is important for us to understand कि Indus Water Treaty है क्या. While I assure you all कि मैं इस पे भी एक पॉडकास्ट बनाऊंगी बहुत जल्द on the history of Indus Water Treaty, but for now let me just give you a summary of the treaty. Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan bilaterally in the year 1960 on 19th of September. और ये ट्रीटी साइन कौन कौन करते हैं? इस ट्रीटी को साइन किया जाता है पाकिस्तान के कराची में बाय आर अर्स्ट वाइल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट आयूब खान. लेकिन इसको मीडिएट करता है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर WAB इलिफ इस पूरे ट्रीटी का इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इसको मीडिएट करते हैं. और वर्ल्ड बैंक रिमेन्स अ न्यूट्रल विटनेस टू द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी. ये ट्रीटी साइन क्यों होता है? ये ट्रीटी होता क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयर वाज कॉन्स्टेंटली अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. तो उसको कहीं ना कहीं एक ठहराव की ज़रूरत थी, उसको एक सोल्यूशन पे लाने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक मीडिएट करता है और वो इस ट्रीटी को प्रपोज करता है और ये बायलैटरली दोनों कंट्रीज़ इसको साइन करती है और अग्री करती है कि अब से देयर विल बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो भी हैं वहाँ से जो वाटर आता है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दी अपर रिपेरियन स्टेट इंडिया and the lower riparian state Pakistan. This is the crux of the treaty, जो कि preamble था और it was rather premised upon the rather it symbolized friendship, it symbolized amicability and it symbolized peace. लेकिन इंडिया को मजबूरन इस ट्रीटी को सस्पेंड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ Pakistan's constant violation of the treaty's spirit in the form of wars and terror attacks against India. और पहलगाम was like the last nail in the coffin, जिसके बाद India took a very assertive stand against terrorism और उसने वाटर ट्रीटी के अबेंस को डिक्लेयर कर दिया and it still remains suspended. तो ये था in a nutshell या फिर ये था in a very brief manner what Indus Treaty is all about and why it has been suspended. अब सवाल ये आता है कि why does Pakistan does not want any kind of modification discussion to be tabled? इसका सबसे पहला रीज़न हो सकता है वाटर सिक्योरिटी. पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और रादर पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इट्स हेविली डिपेंडेंट ऑन द इंडस वाटर सोर्स, इंडस वाटर फ्लो. और कल को अगर इंडिया किसी भी तरह का डिसीजन लेते हुए ये मॉडिफिकेशन लाती है कि वाटर का जो फ्लो है एज एन अपर रिपेरियन स्टेट, इफ़ इट डिसाइड्स टू कंट्रोल और लोअर द वाटर सप्लाई जो पाकिस्तान में अभी आ रहा है, तो पाकिस्तान को एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है. बिकॉज लाइक आई सेड, ना कि उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ हेवीली डिपेंडेंट ऑन दी वाटर सोर्स ऑफ इंडस रिवर, बल्कि उसका जो डोमेस्टिक यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम दिस वाटर सोर्स. तो किसी भी तरह का मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ द वाटर फ्लो कैन हैव अ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान. ये है पहला रीज़न, वाटर सिक्योरिटी. दूसरा जो रीज़न हो सकता है दैट इज़ यूनिलैटरल एक्शन. इंडिया अगर किसी तरह का यूनिलैटरल एक्शन लेती है अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल रवि रिवर का वाटर सस्पेंशन, तो ये पाकिस्तान विल कंसिडर दिस एज द वायलेशन ऑफ द ट्रीटी. राइट, ट्रीटी में इट वॉज अग्रीड कि देयर विल बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. और अगर आप वाटर सोर्स को रोक देते हो देन समवेयर यू आर वायलेटिंग द ट्रीटी. तो उससे क्या होगा, क्योंकि द treaty is designed in a way कि it
ascertains that there should be a stable and predictable water supply, वो बहुत बुरी तरीके से मार खा सकता है if India takes any kind of unilateral action or decision. ये है दूसरा रीज़न. तीसरा जो रीज़न हो सकता है दैट इज़ कंसर्न अबाउट नेगोशिएशन. पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया इस मॉडिफिकेशन प्रपोज़ल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ सकती है. हाउ? इंडिया विल ट्राई टू गेन मोर एक्सेस ओवर द वाटर सप्लाई और एज एन अपर रिपेरियन स्टेट. और अगर ऐसा होता है देन अगेन Pakistan will have to face a crisis. It can be in the form of food crisis, it can be in the form of crop crisis. क्योंकि पानी नहीं रहेगा अगर crop सींचने के लिए, तो आप करोगे क्या? And if you don't grow crops, you obviously don't build your food supply, right? So ये और एक reason हो सकता है. The fourth reason for Pakistan could be impact on agriculture. We have to अंडरस्टैंड कि जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान का भी एग्रीकल्चर इज़ दी कंट्रीज़ बैकबोन, उसकी इकोनॉमी का बैकबोन है. तो किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन इन द वाटर सोर्स कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो इन टर्न इम्पैक्ट करेगा उसकी इकोनॉमी पे. नॉट जस्ट दैट, लाइक आई राइटली मैंशनड अ व्हाइल अगो, इट कैन लीड टू एन एडवर्स इफेक्ट on its crop yields and ultimately will lead to a food crisis. तो और rather food security और crop yield पे इसका भारी impact हो सकता है. जो पांचवा रीज़न है दैट कुड बी हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स. इंडिया और पाकिस्तान के बीच कम से कम 6 दशकों से अभी डिस्प्यूट्स चल रही हैं, राइट? और इन डिस्प्यूट्स के चलते देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट दैट both the nations have against one another. और इस mistrust के चलते पाकिस्तान feels insecure and unsafe to have any kind of discussion over the treaty with India, क्योंकि हो सकता है इंडिया कोई बहुत बड़ा बदलाव ले आए वाटर ट्रीटी में और जिससे कि पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़े. ये कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटी का वायलेशन भी होगा और उसके चलते इट कुड ऑल्सो पॉसिबली लीड टू अ वॉर ओवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. ये कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहती थी. अब फिर से ज़रा वापस चलते हैं ऑन द ग्लोबल डिप्लोमेटिक आउटरीच जो इंडिया के डेलीगेट्स ने चलाने की कोशिश की थी. आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट स्टांस दैट इंडिया हैड टेकन, जो कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने करी थी. इट वॉज़ अ ग्रेट स्टांस. 7 डेलीगेट्स की टीम्स का जाना एंड देन प्रचार करना इन 33 नेशंस so that they rally confidence of these nations against Pakistan being the epicenter of terrorism, जो कि सबको पता है. I think it was a great attempt. लेकिन ये attempt fail क्यों हुआ, if I may call it so, क्योंकि अभी तक हमको कोई tangible result देखने को नहीं मिला है. So let's discuss कि कहाँ पे gaps रह गई. Before I even discuss the gaps, it is important to mention कि जब हमारी ये delegates की टुकड़ी अलग अलग देशों में जाके अपने point of view और अपने anti-terror campaign against Pakistan का जो they were trying to rally confidence from these 33 nations, उस दौरान हमको ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान is appointed as chair in the UN in 2 sections. I'll mention them. एक पाकिस्तान को मिलता है सैंक्शन कमिटी ऑन तालिबान का, वहाँ पे पाकिस्तान को चेयर मिलता है. दूसरा मिलता है वाइस चेयर ऑन काउंटर टेररिज्म कमिटी. पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाता है टिल 31 of December 2026 तक ऑन नॉन परमानेंट सीट. Now, I don't know how to react to this, to be very honest. जब हमारी इंडिया की इतने बड़े बड़े लीडर्स जाके अपने स्टांस को रख रहे हैं, why did UNSC give a turn a blind eye to it? कहाँ कमी रह गई? So we need to discuss this. But उससे पहले it is very important to mention कि
कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने कवर की थी कि पाकिस्तान ने 4 सीट्स की डिमांड की थी इन यूएनएससी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया. लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी. पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट पूरी तरीके से नहीं किया गया. पाकिस्तान ऑलरेडी गॉट 2 सीट्स, विच मीन्स पाकिस्तान इज़ हाफ वे थ्रू. दैट इज़ द रियलिटी. रिजेक्ट हम तभी बोल सकते हैं जब पाकिस्तान का जो डिमांड था ऑफ 4 चेयर्स, अगर उन चारों रिक्वेस्ट को खंडन किया जाता, दैट वुड हैव बीन एन एब्सोल्यूट रिजेक्शन. 2 सीट्स मिली हैं पाकिस्तान को, 2 चेयर्स मिली हैं पाकिस्तान को, एंड दैट समवेयर आई फील इट पोजेस अ थ्रेट टू दी to our nation's security, and I'll tell you what are my reasons for feeling like that. Let me discuss about the reasons. उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, and I'm going to talk about it. Whether I'll do it fearlessly or not, I don't know. Maybe I'll be a little diplomatic and I'll watch my words a little bit, but I'll talk about it. I'll voice it out. हमारी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक इस यूएनएससी के इस डिसीजन पे किसी तरह का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया है, we do not know. Maybe they are deliberating, maybe they would have their own reasons, but kahin na kahin, as a citizen of this country, I feel the need to know ke why is our Indian establishment quiet on the UNSC's decision. ये पहला है. दूसरा जो है, आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, पाकिस्तान का जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ पाकिस्तान का यूएनएससी में, इसके बाद ऑपोजिशन ने ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस. आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स. पवन खेड़ा, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया था और उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, एंड quote unquote, how can the global committee allow the continuous legitimization of sponsorship of terrorism of Pakistan? And I think that's a legitimate question to ask, क्योंकि इसी का ही तो बॉयकॉट करने और इसी के अगेंस्ट फाइट बैक देने ही तो हमारी टुकड़ी गई थी, डेलीगेट्स की टुकड़ी गई थी इन यूएनएससी, राइट? तो आई थिंक वी हैव ऑल द राइट्स टू आस्क क्वेश्चंस टू यूएनएससी कि भाई आपने ऐसा, सब कुछ आपके सामने था with evidences. The world's aware of कि recently पहलगाम में क्या हुआ. The world's aware of the 3 different wars that Pakistan has launched against India over decades. The world's aware of the different terrorist attacks that Pakistan has launched against India. Still they chose to give a blind eye to all of this and appoint Pakistan in the chairs. Why? ये है पहला. और एक प्रतिक्रिया जो हमें देखने को मिली थी फ्रॉम कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे. उन्होंने अपने प्रतिक्रिया में ये व्यक्त किया था कि आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने जो लोन्स और बेल आउट्स अप्रूव किए पाकिस्तान के लिए, ये जो फंडिंग है वो पाकिस्तान के मिलिट्री की जो एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी है उसको कहीं ना कहीं फ्यूल करेगी. एंड द आर्मी, द Pakistani army will get enough funding to launch any kind of terror attack or a war against India once again. और इसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूएनएससी के इस डिसीजन को कोट, I will quote his words, most unfortunate, ill-informed and unacceptable कहा है. और पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क के ग्रे लिस्ट में शामिल करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि पाकिस्तान की जो फंडिंग एक चेक पे रखा जाए, उसको मॉनिटर किया जा सके दोबारा. सो आई थिंक दीज आर वेरी लेजिटिमेट पॉइंट्स दैट द ऑपोजिशन हैज़ हाईलाइटेड. अब मेरा सवाल ये है कि इसको अगर I think these are very legitimate points against terrorist activities. उसको I think these are very legitimate points that the opposition has highlighted, and I think हम में से कई सारे यही सवाल शायद हमारी गवर्नमेंट को पूछना चाहते होंगे, और पूछिए, सवाल पूछना ज़रूरी है. इट्स योर राइट टू नो एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. इट्स योर राइट टू नो about
a national crisis that the country is trying to fight back so very aggressively. ये हो गए कुछ अहम मुद्दे कि ऑपोजिशन ने कैसे रिएक्ट किया, हमारी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ क्यों नहीं कहा ऑन द यूएनएससी's डिसीजन. इस फंडिंग को जो पाकिस्तान को मिल रही है फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से, क्या इसको अगर रोका नहीं जा सकता था तो क्या इसको डिले किया जा सकता था किसी तरीके से, जिसको करने में हम नाकाम रहे. ये कुछ सवाल हैं. और इसके अलावा भी जो और एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान को अभी जो पावर मिली है आफ्टर being appointed as chair and vice chair in the UNSC, would Pakistan use this or misuse this to spread any kind of anti-India narrative जो कि वो हमेशा से करती आई है in the UNSC? डिप्लोमेटिकली क्या ये इंडिया को एक धक्का पहुंचा सकती है किसी तरीके से? ये देखने वाली बात होगी. अगर ऐसा होता है तो हमारी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे कॉम्बैट करती है, ये भी देखने वाली बात होगी. इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं, और सवाल खड़े हो रहे हैं जो इंडिया के इस एफ़र्ट को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करती है to portray Pakistan as the epicenter of terrorism. कहीं ना कहीं इस एफ़र्ट को पूरी तरीके से अंडरमाइन करती है. और इसके कुछ रीज़न्स हैं. सबसे पहला जो रीज़न है वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये कंफर्म करना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज़ फायर हुआ था, इट वाज मीडिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप. उनका ये कहना, इज़ इट रेजिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस दैट इंडिया हैड कि ये जो हुआ था, ये जो सीज़ फायर हुआ था, इट वाज अ बायलैटरल डिसीजन बिटवीन द टू कंट्रीज़. कहीं ना कहीं क्या इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है on the bilateralism that India has, with Pakistan. ये सबसे पहला है. दूसरा है IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो लोन सैंक्शन किया, अब इसे क्या पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकती है टू लॉन्च अनदर टेरर अटैक अगेंस्ट इंडिया और लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इंडिया? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी? और एक ये भी सवाल उठता है कि करंट इंडो पाक क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान का ये लोन सैंक्शन हो जाता है. इंडिया इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को कि इसको अगर सैंक्शन करने से अगर आप नहीं रोक पाए तो किसी तरह का डिले करा देते कम से कम. क्या हम इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए? ये है दूसरा सवाल दोस्तों. तीसरा है इंडिया के ऑल 7 पार्टी डेलीगेशंस ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एफ़र्ट दिया UNSC में, उसके बावजूद किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान को अभी तक टेररिस्ट स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं किया UNSC में. ना केवल वो, ना ही अभी तक कोई अनइक्विवोकल स्टेटमेंट जारी हुआ है जो इंडिया के इस एजेंडा को या फिर इंडिया के इस स्टांस को सपोर्ट करता हो. तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल डिप्लोमेटिक अप्रोच और फॉरेन पॉलिसीज़ पे एक सवालिया निशान लगाता है? चौथा जो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ वो है चाइना का लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करना ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी. और इनफैक्ट UNSC में भी हमको चाइना का सपोर्ट देखने को मिला इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. ऑफ कोर्स दे शेयर अ रीजनल ऑब्जेक्टिव एंड अ कॉमन राइवलरी अगेंस्ट इंडिया. क्या ये सब कहीं ना कहीं इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट बनने का पोटेंशियल रखती है? इन सवालों के अलावा और एक सवाल जो है वो है, हमने बैटल फील्ड में तो पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इस बैटल फील्ड के गेन को क्या हम डिप्लोमेटिकली ट्रांसलेट करने में इन द UNSC कहीं ना कहीं सक्षम नहीं रहे? वर वी नॉट इफ़ेक्टिव इनफ टू ट्रांसलेट द गेन्स फ्रॉम आवर बैटल फील्ड? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन पॉलिसी को सशक्त करने की एक चेतावनी हमें देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली.
इसके अलावा भी इंडिया का जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, दैट वी आर फेलिंग डिस्पाइट ऑफ so much of evidence, despite of such strong stance, हमको वो जीत हासिल नहीं हुई जिसकी हमें उम्मीद थी इस डेलीगेशन से। अभी तक वो हमको जीत हासिल नहीं हुई है। तो क्या कहीं ये हमारी जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वीकनेस पे भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है? तो ये हैं कुछ अहम सवाल जिस पे चिंता करना ज़रूरी है। चिंता करिए, सवाल पूछिए। आज सवाल पूछ सकते हैं, कल शायद ये मौका भी ना मिले। इंडस वाटर ट्रीटी आज भी सस्पेंडेड है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड और एयर स्पेस आज भी रद्द है। अब आगे क्या, शायद इसकी चर्चा हो रही है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।